Okay, guys. So, just tell me, what do you mean by reports? What are reports? How often do you see them? Yes. What are reports? We've read this topic earlier also. So, I'm asking, what are reports? Yes. Ma'am, it is an account of something that we have observed and we have narrated the whole thing in that. Okay. Anyone else? What are reports? I Reports will क्या होती है? Just have yes. report is a kind of written document that consists of the incident, when the incident will happen, how, and for the how much long period it will happen. It And it briefed also consists about of. listen. It is it like it briefed about any particular event. This is what you are trying to say. A brief information of any event. Yes, ma'am. Okay. Yes. Anyone else? And the What second are unit reports? is there. What? Ma'am, is the second unit. Yes. You have already completed the first unit. That was fundamentals. Yes, I've clearly mentioned in your WhatsApp group also that these are the two PDFs you have to read for your exam. So like I read it. अगर फिर भी if you are facing any difficulty in understanding and you are confused with the syllabus, let me know. I'll give you a copy. Based No, on ma'am. that, you I'm not yes. confused with the syllabus. I actually joined in this group after a week, so that's why I'm asking. Okay, and then we just started this unit. Don't worry, आपको कुछ ज़्यादा मिस नहीं हुआ. Yes. Who's next? What do you mean by reports? What are reports? Okay. So, schools याद है? Do you remember कि आप जब schools में थे, so they gave you like आपके yearly mark sheet. That Yes, was ma'am. report. That was report. Report card. Yearly. I was in convent, so I used to get it like in every third month, half yearly, quarterly. So those are the report cards. Okay. In hospital, there's a report about any patient or like his or her condition. वो report है. किसी भी organization में कोई भी टास्क जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग ब्रीफ्स जो है वो रिपोर्ट्स है. सो जो रिपोर्ट है वो एक पर्टिकुलर आइडिया तक, एक छोटे से आइडिया तक कन्फाइंड नहीं है, ये हर जगह है. एंड वी डू यूज़ रिपोर्ट इन आवर डेली लाइफ. ठीक है. न्यूज़ चैनल जो है वो एक तरीके की ओरल रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट्स. सो यू विल सी इन द इंट्रोडक्शन. We see many examples of reporting in daily life. A nurse at hospital reported to the doctor in, in the patient ward about the condition of each patient. Yes, hospital में जो use हो रही है वो सारी reports हैं. Manager अगर अपने supervisor को किसी भी चीज़ के regarding inform कर रहा है, that is the report. He'll like if you'll share any file or something, that will be in a report format. वो पूरी report format में होगी. And report format क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँ.
ओके, टाइमली जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज और स्कीम्स लेके आती हैं वो रिपोर्ट्स हैं। सो रिपोर्ट्स एक लिमिटेड नहीं है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक, रिपोर्ट हर इंस्टीट्यूशन में है, वर्क प्लेसेस पर है, आपके एकेडमिक्स में है, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, आपके जर्नलिज्म में है, आपके एंटरटेनमेंट में है, आपके स्पोर्ट्स में भी है जैसे स्टार्ट्स जो होते हैं। सो रिपोर्ट्स आर एवरीवेयर। एंड रिपोर्ट्स फिर क्या होगी, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन, उसकी एनालिसिस, कंक्लूजन और सजेशंस के साथ, these are the like जो written document होता है which consists these three things. First is your analysis, conclusion and suggestion, recommendation or solutions is reports, like they are the reports. Whichever document will consist these three elements, those things are the reports. Is it clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, chalo let's see what is the definition. A report usually a piece of a factual writing based on the evidence containing organized information and or analysis of a particular topic. See, it is a factual writing based on facts and figures, and it is supported by some evident proofs. And the main and the very important thing जो भी किसी भी reports की होती है, that is it is formed or organized, you know, in nature. वेरी ऑर्गेनाइज ऐसे नहीं हो सकता कि विदाउट एनालाइजिंग एनी प्रॉब्लम आप उसका सोल्यूशन दे दें। ओके, तो सेम चीज़ ऐसे होगी, लाइक आपको किसी इशू के बारे में बताया गया है तो यू विल रीड अबाउट दैट इशू फर्स्ट। आप आधी इंफॉर्मेशन सुन के उस इशू का अच्छे से अच्छा जो है सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वही सेम वे होता है, वही सीक्वेंस होता है, वही सिंक्रोनाइजेशन से वी फॉर्म रिपोर्ट्स। It is a major form of technical business and professional communication. A person transmits certain facts, ideas, or suggestions useful for another person through a report. It can also be the description of an event or a condition. Okay, whenever we are transmitting some ideas, facts, suggestions, which is useful for another person, it will be through a report. Okay. In your syllabus, it is clearly mentioned that technical report along with definition and importance. That means importance of this report. This technical report is very mandatory to read. So just tell me कि what do you think कि इसकी importance क्या होगी? Why do we write reports? Yes. What do you think reports are important? Ma'am, reports are important because it gives us a brief information about the incident or an event, and and with the help of the report, we can easily find a particular solution for that incident. Yes. Okay. Anyone else? It is the medium of communication between the two participants for in minimum time. It gives so much data, so it is essential. Not in minimum time, Satish. Sometimes reports are in a manuscript form, which is very bulky. But yes, it is a medium of communication. It is one of the medium of communication between two people. Yes. Anyone else? मैम, रिपोर्ट्स वगैरह के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी बनाया है, हमारा प्रोडक्ट है, तो हम उसकी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार कर हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। Yes. Uh, by this मतलब मुझे इतना समझ आ रहा है कि दो मतलब हो गए आपके सेंटेंस के, either you are checking its progress
कि वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सेकेंड थिंग, आप उसके बारे में डिटेल्स दे रहे हो कि हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर ऐप मैम और रिपोर्ट तो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना। यस, रिटन एंड ओरल बोथ। So, ma'am, what is the difference between report and speech then? Reports consist usually analysis, conclusion, and your recommendation, and speeches are not. So, ma'am, what do speeches contain then? स्पीचेस एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है आपके किसी भी टॉपिक का, लाइक आपके वन मैन परसेप्शन बेस्ड होता है। रिपोर्ट्स यूजुअली फैक्ट्स फिगर्स के साथ साथ बहुत सारे एविडेंस से भी सपोर्टेड होता है, और रिपोर्ट्स एक इंसान से लेकर 10 इंसान तक और 20 इंसान तक बना सकते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट, बट स्पीचेस मैक्सिममली वन मैन परसेप्शन होता है। Speeches are general in nature. Speeches is like whenever we are addressing someone, किसी भी occasion के लिए. Reports are primarily used in your professional sides. और ये नेचर में थोड़ी सी बिटर होती हैं. It can represent the truth or the negative positive side both, but speeches we usually try like speeches हम कहाँ देते हैं स्पर्श? To mass people, To bulk of people, or to mass communication. whenever we are addressing people, किसी भी क्वांटिटी कितनी भी हो उनकी, ज़्यादा कम हो, एक पर्टिकुलर ओकेजन होता है उसका, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उस पर बात करते हैं. हम कभी भी टॉपिक से अलग नहीं जाते, बट रिपोर्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स में आ जाती है, बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर आ जाती है. स्पीचेस कंक्लूजन, एनालिसिस और रिकमेंडेशन की एक साथ बात नहीं करती हैं. रिपोर्ट्स इन तीनों चीज़ों की एक साथ बात करती हैं. ओके. यस. इम्पोर्टेंस. चलो लेट्स सी. A report is a basic management tool used in decision making. Okay. I asked my like other two sections the same question. Okay, like in exam, if I'll ask you this, a report is a basic management tool used in decision making. Full stop. Explain. What would be your answer? Like, what will you answer? How will you justify this statement that a report is a basic management tool used in decision making? Except Yash and Satish and Girisha. Yes. बाकी के लोग आंसर इस चीज़ को. Ma'am, reports provide enough evidences to conclude some decision. It provides some numbers, it provides some digits on which we can place our decisions. It provides facts from history, from past, and graphs, flowcharts. It's just a summary of a brief of an incident occurred. It going to be occurred. Yes. So it ultimately makes us an easy task to make a decision if we have some evidences or stuff on which can conclude. Yes. See, reports usually help us to make decision. Our report consists the briefs of any problem. Okay, it had like whenever a person make report, usually that person analyze the problem in a deep manner. Okay, if he'll know the problem, then he'll know the its and which are lacking, that created that particular problem. Okay, जब हमें प्रॉब्लम पता है, उसका रीजंस और उसके कॉजेस पता है, so we can make or we can create some solutions that will help us कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. ओके. चलो लेट्स मूव अपने इम्पोर्टेंस पर. The following list will be given idea of importance of reports and report writing to the organization and individuals.
First, a report is only tangible product of a professional. All the efforts of engineers, academicians, and researchers culminate in reports that convey to others the efficiency with which they carry out their assignments. Reports are the only tangible proof of your professionalism and of your intelligence. How? See, whenever we make or work on any topic or we are doing any research, so we mention some of our resources and intent or highlighted lines which we thought that it will be important to support our argument. तो हम लोग उनको एक पेपर पे एक शीट पे हम लोग ट्राई करते हैं उनको सेग्रीगेट करने का टॉपिक वाइज. अगर हम सारी शीट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख देंगे वो एक रिपोर्ट बन जाएगी. तो दो चीज़ें, लाइक इमेजिन दे आर टू पीपल ए एंड बी, और ए और बी को सेम टास्क दिया है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर यू हैव टू प्रेजेंट, और आप कितना अच्छे से उस चीज़ को समझा सकते हो, पढ़ सकते हो. फर्स्ट थिंग, ए और बी सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ने अच्छे से मेहनत करी है, बट ए ने कुछ रफली जॉट किए हैं पॉइंट्स और बी ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके उसको एक फाइल में बना दिया है. लाइक उसमें उसके बारे में उसकी सारी चीज़ें डाली हैं, रिसोर्सेज कहाँ से लिए, क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसको कैसे कंक्लूड किया एंड उसके सोल्यूशन जो भी थे उसने वो रखा. अब उन्हें प्रेजेंटेशन की बारी आई. अब प्रेजेंटेशन के लिए के टाइम पर इमेजिन कि कोई ऐसे टीचर्स और कोई ऐसी ऑडियंस आ जाती है जो कि उनके साथ सही से रिलेट नहीं हो पा रही द वे दे आर स्पीकिंग. सो दे विल प्रोवाइड यू आपकी राइटिंग, बट ए की राइटिंग में सिर्फ ये था कि एक दो शीट्स थी और उस पर कुछ रैंडम पॉइंट्स लिखे हुए थे, एंड जो बी की फाइल थी वो पूरी ऑर्गेनाइज थी. वॉट, लाइक अकॉर्डिंग टू यू, किसकी फाइल ज़्यादा, कौन इंसान सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल था और किसको समझना ज़्यादा इजी था, ए और बी, क्योंकि दोनों ने सेम मेहनत करी, दोनों के पास रिसोर्सेज सेम थे. Ma'am, it depends on the content they are showing. इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दे आर शोइंग. डोंट यू रियली फील कि अगर कोई आंसर अच्छे से लिखा हुआ है स्पर्श एंड दूसरा आंसर एकदम वैलिड पॉइंट्स के साथ नहीं है, अगर वैलिड पॉइंट्स भी हैं तो वो मिस ऑर्गेनाइज हैं, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज मैम नहीं है, तो हम उसे ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. Ma'am, imagine there is a report of world ending, and so there will be no one focusing on the presentation of the report. They're only one focusing on the content. Depends on the content, na? दोनों ने कंटेंट मेकिंग के लिए सेम रिसोर्सेज यूज़ किए हैं. अगर कोई भी लोग हैं देन ऑल्सो सी, समझाने का तरीका एक अलग होता है. दैट्स वाई आई डोंट नो इफ़ यू हैव फेस दिस और नॉट. दैट्स वाई सम पीपल से कि आप ये स्पेसिफिक पब्लिकेशन या ये स्पेसिफिक राइटर को ही सजेस्ट करें अपनी रीडिंग के लिए. अगर आपने अपने मैथ्स के लिए पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आपने आर डी शर्मा वगैरह पढ़ी होगी इन योर स्कूलिंग. सो वॉज देयर स्पेसिफिक रीज़न आर डी शर्मा पढ़ने के लिए? इट वॉज जस्ट कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स के साथ साथ वो चीज़ समझने के लिए इतनी ईजी कर दी थी कि जिन लोगों के पास उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी, जो लोग उसे सही से समझ नहीं पा रहे थे, लाइक जो उनसे मिल भी नहीं पा रहे थे, वो लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ लें. दैट्स वाई वो एक बुक बनी. थीसिस और रिपोर्ट्स भी इसी बेसिस पर बनते हैं. इफ़ यू आर सेइंग कि अगर सिर्फ ओरल वे से हम कोई भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, देन यू आर रॉन्ग. बिकॉज इन फ्यूचर व्हेनेवर इन लाइक आपके प्रोफेशनल साइड पे व्हेनेवर यू बी आस्क्ड टू प्रेजेंट, आपसे सबसे पहले पता है क्या होगा, आपको एक दिन पहले अपनी पूरी की पूरी फाइल शेयर करनी पड़ेगी, पूरी स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी विद योर मेंबर्स एंड टीम मेंबर्स. Just tell me a thing कि have you ever participated in a debate or just just a debate, सिर्फ debate में, because usually what happens in debate कि आपको अपनी पूरी की पूरी स्पीच, अपनी पूरी की पूरी जो आपकी राइटिंग होती है वो आपको जजेस को पहले देनी होती है.
I'm not sure whether it was conducted in your school or not, but that is the prime thing जो कि की जाती है. And why do they do that? Because sometimes what happens कि हम किन्हीं words को सही से present नहीं करते. That's why we have to submit them a written copy of our own. And reports are the tangible form and tangible proof of your intelligence and your professionalism, because इनको स्टोर करना भी ज़रूरी होता है. हम हर चीज़ हमेशा याद नहीं रख सकते. दो आवर माइंड इज़ वेरी एडवांस इन सारी चीज़ों में. इंसान ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर ने इंसान नहीं बनाया. स्टिल वी डू नोट डाउन सर्टेन थिंग्स. Based on your argument, I'm suddenly feeling that there were some students in my class जो कि क्लास में आते थे without a notebook or a pen. They used to think कि वो सारी की सारी चीज़ें ना दिमाग में फिट कर लेंगे. But obviously we have to jot certain points so that it will help us कि जब हम आगे पढ़े वो टॉपिक तो हम आगे इम्पोर्टेंसेस में बात करेंगे कि रिपोर्ट्स टैंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोफेशनलिज्म की और आपके इंटेलिजेंस की क्यों है. आपने अपना इंटेलिजेंस प्रूव कर दिया, इधर आपको चांस मिला बोलने का या नहीं, तो आपकी ऑडियंस आपसे समझ पाई या नहीं. हर चीज़ को समझाने का इंसानों का अलग तरीका होता है. मैं आपको ये चीज़ ऐसे समझा रही हूँ, शायद किसी और ने किसी और तरीके से समझाया होगा. इट्स वेरी नॉर्मल, बट वो एक प्रूफ हो गया कि आपने उस चीज़ के रिगार्डिंग डीप में स्टडी किया है, फर्स्ट थिंग. और वेन एवर इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर होती है कि अगर आपकी बोली गई बात को कोई क्वेश्चन करे और जैसे कि आपने या फिर वही सेम इशू दोबारा आने लगे, तो आप उस टाइम की उस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो. ओके. Next point is reports enable decision making and problem solving in organization. इसके बारे में बात की थी. Based on the information presented, analysis discussed or suggestion rendered, administrators can make important decisions and solve serious problems. Yes. Reports help the authorities in planning new ventures and evaluating men and material. How? रिपोर्ट्स कैसे हेल्पफुल रहती हैं कुछ भी न्यू वेंचर्स प्लान करने के लिए और एवेलुएट करने के लिए मैन एंड मटेरियल. पहले बात करते हैं न्यू वेंचर्स की. इमेजिन कोई भी कंपनी है जो कि रीलोकेट होने का ट्राई कर रही है, फिर अपनी नई ब्रांच खोलने का ट्राई कर रही है. सो सबसे पहले वो चेक करेगी रिपोर्ट्स उस लोकेलिटी के कि जहाँ पर भी उन्होंने प्लान किया है उस लोकेलिटी की रिपोर्ट्स मंगाएगी. वहाँ पे देखेगी लैंड कैसे हैं, या वहाँ पे रेंट सिस्टम कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लोग क्या कम्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके नियर बाय एरियाज़ में यूथ कितने हैं, क्या वो लोग एजुकेटेड हैं या नहीं. सो उस बेसिस पर एक रिपोर्ट होती है. हर जगह पर ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वहाँ पे चेक करने के लिए. एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल डिसाइड कि क्या वहाँ पर उन्हें एक नई जो ब्रांच है वो खोलनी चाहिए या नहीं. सेकेंड थिंग, इट हेल्प us to evaluate men and material. How men? रिपोर्ट कार्ड्स बेसिकली क्या आपके रिपोर्ट कार्ड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बताने के कि आप एक्चुअली में कितने ज़्यादा समझदार हैं कितने ज़्यादा नहीं. आई नो ये बात बोलने में बहुत ख़राब लग रही है कि हम लोग ये बोलते हैं कि ओके प्लीज़ डोंट कंसिडर रिपोर्ट कार्ड्स और ये और वो. आपका सारा कुछ उसी में बेस नहीं होता, बट समटाइम्स बट लोग यही चीज़ रेफर करते. हर कोई रिपोर्ट कार्ड रेफर करता है. विदाउट रिपोर्ट कार्ड किसी को अगर हम स्कूल्स की बात करें, हमारे पेरेंट्स बहुत फोर्स करते थे हमें कि 10th में इतने मार्क्स आने चाहिए, 12th में इतने मार्क्स आने चाहिए. एंड एवरीवन इज़ लाइक तुमने रिपोर्ट्स का इतना बड़ा मार्क्स ही ज़रूरी नहीं होते, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होती है. आई एग्री विद दैट. बट जब कोई और आगे काम हो रहा होता है तो हम एक दिन में इंसान की इंटेलिजेंस और उसके बिहेवियर को जज नहीं कर पाते. दैट्स वाई वी डू रेफर रिपोर्ट्स. सेम यहाँ पर अगर कोई भी इंसान है वो एक टीम से दूसरी टीम में जाने का ट्राई कर रहा है या किसी दूसरे टास्क में असाइन होने का ट्राई कर रहा है, तो उसका मैनेजर उसकी प्रीवियस ईयर की असेसमेंट चेक करेगा कि हाउ ही वाज डूइंग.
और वो उसके पास एक तरीके का प्रूफ भी हो जाएगा कि अगर आगे कोई से क्वेश्चन करता है रिगार्डिंग दैट पर्सन कि आपने उसको ऐसे कैसे भेज दिया, ही वॉज नॉट गुड और ही इज़ नॉट डूइंग गुड राइट नाउ। सो आप उनकी प्रीवियस रिपोर्ट्स को जो है वो मेंशन कर सकते हो कि सर बेस्ड ऑन दिस मैंने ये काम किया। नेक्स्ट थिंग, हाउ यू विल एवेलुएट मटीरियल। इसका सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ है, या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह पे देयर इज़ अ ब्लॉग जो रिव्यू का होता है, स्टार्स का होता है, वो यहाँ पर एज अ रिपोर्ट काम करता है। हाउ कि हम यूजुअली चेक करते हैं कि उस पर रिव्यू कितने हैं और कितने परसेंट लोगों को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो सही लगा। सो ये रिपोर्ट हो गई एक तरीके से उस मटेरियल की, उस प्रोडक्ट की, कि हमें पता चल रहा है कि अगर ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है सो हम उसे किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं या फिर खुद खरीद सकते हैं। मैम फेक होते हैं वो आदत। अब वो आई डोंट नो, बट स्टिल ये एक एग्जांपल था कि जो मटेरियल्स के ऐसे रिपोर्ट्स होती हैं। ओके मैम। Okay. Next thing is reports are an important means of information dissemination within and outside the organization. Many of our routine reports such as inspection report वगैरह वगैरह transmits information across or outside the organization. Yes, reports are important means of information dissemination in and outside the organization. Yes, how? See, reports यूजुअली डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे बनाता है, ईदर इट इज़ मंथली और बाई मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली, किस बेसिस पे। और रिपोर्ट्स क्यों ज़रूरी है? रिपोर्ट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट just to check either your organization is growing or not. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के लिए रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इमेजिन आपने पिछले साल की रिपोर्ट बनाई एंड इस साल की रिपोर्ट बन रही है एंड यू सी दैट देयर इज़ सम परसेंटेज जिसमें कि वी आर लाइक फेसिंग लॉस। सो हम क्या करेंगे, हमें एटलीस्ट आइडिया मिल गया 2 साल का, हम लोग उस दोनों साल की रिपोर्ट्स को गो थ्रू करेंगे एंड वी विल चेक वेयर आर वी लैकिंग। ओके, सो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल के लिए भी काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए। एंड इफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रोइंग वेरी एफिशिएंटली, वेरी लाइक नाइसली, सो वो रिपोर्ट्स अगर हम नॉट जस्ट वो रिपोर्ट्स बट वही रिपोर्ट्स हेल्प करती हैं बाहर के लोगों के लिए भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए एंड उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, next point is reports serve a measure of the growth, progress or success of an organization. This is very important. This point is very important. ठीक है, रिपोर्ट्स हेल्प करती हैं ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस को मेजर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ वर्किंग फ्रॉम लाइक पास्ट मैनी ईयर्स, सो हो जाता है वी डोंट फेस गुड टाइम फॉर लॉन्ग, कभी कभी ऊपर नीचे होने लगता है एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स लाइफ, लाइक सबके साथ ये होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी यही होता है। तो ये ग्रोथ बताती हैं, ये इवन ये उसके सल्यूशंस, बेटर सल्यूशंस फॉर्म करने में भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती है। बिकॉज रिपोर्ट्स कैसे किन किन चीज़ों से बनी होती हैं। फर्स्ट थिंग योर कि आपने किसी भी प्रॉब्लम रिलेटेड, किसी भी इशू रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया है, आपने उसे कंक्लूड किया है एंड आपने कुछ सॉल्यूशंस और कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स भी उसको दिए हैं। Okay. Reports serve as a valuable repository of information. Organizations of various kinds preserve reports of importance and value for a long time so that they can refer to these reports whenever needed. Yes, reports का written form इसलिए ज़रूरी है because it usually becomes a proof
or a solution for future perspective. नॉलेज होना अच्छी बात होती है, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप अपने से बातों से किसी को कुछ समझा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी इंसान को जो चीज़ फुल्ली बाइंड करती है वो होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपकी वर्बल से ज़्यादा आपकी आपकी रिटन फॉर्म में ज़्यादा देखी जाती है कि आप उन चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो। Whenever we plan to give a speech on certain thing, हम लोग एकदम से कोई भी टॉपिक शुरू नहीं कर देंगे। Like for example, Veer Das, if you guys know Veer Das, he's a comedian, he's an actor. Please go through his some of the stand-ups and देखो कितना स्मूथ फ्लो है, एक टॉपिक से निकल के वो दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं एंड आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं होगी एंड वो एकदम बहुत सूदिंग से फ्लो में कवर करते हैं। जितने भी अच्छे स्टैंड-अप्स हैं उन सब की स्पीचेस को देखो, अगर वो लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, एक है सुमित व्यास करके, यस, बहुत अच्छा फ्लो होता है ऐसे लोगों का। तो मैं इस फ्लो की क्यों बात कर रही हूँ कि दो वही चीज़ उन्होंने बोल के बताई है तो वो हमें बहुत अच्छी लगी, अगर वो चीज़ लिख के होती तो शायद हमें वो इतनी अच्छी से और नहीं समझ आती, ठीक है, क्योंकि वो कॉमेडी थी। बट जब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की और आपके प्रोफेशनल साइड की, आपके ऑर्गेनाइजेशनल साइड की, रिपोर्ट्स कंपलसरी होती हैं किसी भी ओरल फॉर्म से, बिकॉज ये एक प्रूफ है आपके प्रोफेशनलिज्म का, आपके इंटेलिजेंस का और इस चीज़ का कि आप कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो। नेक्स्ट थिंग, reports reveal gaps in thinking. A report can give the recipient an idea about whether the writer had thought and proceeded logically and whether he she had conducted an in-depth study of the topic. Yes, reports क्या करती हैं, they usually reveals the gap in the thinking, because आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करी, आप उसकी अगर रिपोर्ट बना रहे हो और सामने वाला इंसान उसको अच्छे से गो थ्रू कर रहा है तो he'll come across some एक्स एंड विक्स कि कुछ चीज़ें अगर उसमें लैक हो रही है कि नहीं, एंड वो एक प्रूफ भी है कि आपने एक किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी की है। रिपोर्ट्स बल्कि ज़रूर होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। The next point is report develop certain skills in writer. Yes, how reports not only help organization but also help the writer to develop certain skills such as ability to organize, evaluate, communicate with greater accuracy. Yes, so whenever you will be like writing report, आप लोगों को पता चल जाएगा what would be its flow और आप उस चीज़ को कैसे सही वर्ड्स में लिखोगे, कितने ज़्यादा इमेजिनेटिव एंड कितने ज़्यादा ब्रॉड हो सकते हैं आप अपनी वोकैबुलरी एंड अपनी राइटिंग स्किल्स के साथ, एंड कितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड हो। सो दीज आर दी like one of the important part of your technical report. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए because in your syllabus it is clearly mentioned that आपकी definition and the importance along with your formats. ओके, एंड पर्सनली ये चैप्टर पढ़ने के बाद आई ऑल्सो फील लाइक कि इस चैप्टर में से ये टेक्निकल रिपोर्ट्स की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और फॉर्मेट ही ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें इट्स लाइक सेकेंडरी, अगर आप समझ जाएं तो अच्छा है, अदरवाइज वो चीज़ें आपको हेल्प कर देंगी अच्छे मार्क्स दिलाने और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉट जस्ट अच्छे मार्क्स बट हाँ फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर आप कभी भी रिपोर्ट बना रहे हो उसके लिए। सो इम्पोर्टेंस समझ आई और अगर कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। यस, समझ आई इम्पोर्टेंस या नहीं? स्पर्श एंड यश, अगर आपको अभी भी डाउट है सो यू कैन डिस्कस राइट नाउ। नो मैम, क्लियर है। यस स्पर्श, Clear. इज इट क्लियर? Yeah, ma'am, clear. ओके, सी आई अग्री विद योर पॉइंट, इट डिपेंड्स कि कौन इंसान किस तरीके से कैसे समझाने का ट्राई कर रहा है। आई टोटली अग्री, बट
आपकी ऑडियंस को जो अट्रैक्ट करेगा ऑन द फर्स्ट हैंड वो उसकी ओरल और उसकी कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी को भी करेगा। प्रोफेशनल साइट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपके जितने भी बाकी की साइट्स हैं, बिकॉज वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फॉर्मेलिटीज़ क्या हो गई कि हर चीज़ की रिपोर्ट डिफरेंट फॉर्म्स बना रखे हैं रिपोर्ट्स के, ना आपको वो फिलअप करनी पड़ेगी। दो यू कैन एक्सप्लेन योर ऑडियंस इन अ गुड वे कि ओके इस पर्टिकुलर ईयर में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, बट रिपोर्ट्स फिर भी लाइक ज़रूरी है। जैसे हमारे विजुअल एड्स ज़रूरी है वैसे ही रिपोर्ट्स ज़रूरी है। ओके, आई होप आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझ आ गई होंगी एंड यू कैन फ्रेम द आंसर्स इफ I ask ki what are the importance of technical reports. I hope because ये ही एक पूरा पैराग्राफ साइड है पूरे चैप्टर की जो मैंने मार्क की हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट्स की। व्हाट आर द पर्पसेस जब हम लोग रिपोर्ट्स लिखते हैं। नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं एंड आपकी प्राइमरी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जो आप रिसर्च करते हो उनके रिकॉर्ड रिसर्च फाइंडिंग और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में होती हैं। आई गेस इसके बारे में यश ने बात की थी इन द वेरी स्टार्टिंग। डॉक्यूमेंट स्केड्यूल एंड टाइम टेबल माइलस्टोन्स की रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, आपके प्लान्स की रिपोर्ट होती हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होती हैं जो कि करंट स्टेटस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में जो चल रहा है। नेक्स्ट आर योर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर रिपोर्ट्स होती हैं। पॉलिसीज़ प्रोसीजर रिपोर्ट्स में का एक एग्जांपल हम वैसे भी ले सकते हैं कि किसी भी कंपनी की जो पॉलिसीज़ बनी है एंड किन बेसिस पे वो बनी है उनकी रिपोर्ट्स आ गई। प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए न्यू पॉलिसीज़ अगर कोई बन रही है या फिर कोई प्रोसीजर बन रहा है उसकी रिपोर्ट्स आ गई। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती हैं, वो भी ऐसी ही रिपोर्ट्स पे बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट थिंग आर योर एनुअल रिपोर्ट्स। आपकी ईयरली रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इफ़ यू प्लान टू जॉइन एनी कंपनी यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर एनुअल रिपोर्ट्स बिकॉज बेस्ड ऑन दैट आपके टास्क और आपकी टीम्स डिवाइड होती हैं, आपके सेक्शंस डिवाइड होते हैं और उसमें वर्क एफिशिएंसी मेजर होती है। नेक्स्ट थिंग रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस डिविजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वही एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होता है बट इट कम्स लाइक बिट अर्ली, इधर आपका क्वार्टरली बेसिस पर और आपका मंथली और हाफ ईयरली बेसिस पर। नेक्स्ट थिंग इज़ योर और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट जो कि आपको जिसका मेन जो गोल होता है, मेन एम होता है किसी भी रिपोर्ट का, वो होता है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का ताकि आप उसके लिए बहुत अच्छे सजेशंस प्रूव कर दे सकें जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छे से कवर कर सकें। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स किसी भी रिपोर्ट के, किसी भी रिपोर्ट को बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स मैम आर दी यस। मैम जो अभी आपने बताया था रिसर्च रिपोर्ट होती है, वो रिसर्च रिपोर्ट और जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो सब सेम ही होता है? रिसर्च रिपोर्ट्स अलग होती हैं, वही मैंने आपको बताया ना, रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें होती हैं और रिसर्च पेपर थोड़े अलग होते हैं, वो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से काम कर रहे होते हैं। आई ऑल्सो मेड माई रिसर्च पेपर। मेरा रिसर्च पेपर वॉज बेस्ड ऑन मंजुला पद्मनाभान्स, माई थीसिस वॉज बेस्ड ऑन मंजुला पद्मनाभान्स प्लेस एंड मैंने उसमें जो था उनकी डीप स्टडी, उनके जितने भी कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, उनके साथ कंपेयर करके वो चीज़ बनाई थी। अगर मैं उसमें उनको, वैसे मैं कर नहीं सकती, अगर मैं मंजुला पद्मनाभन को कुछ सजेशंस देती तो वो थोड़ी रिपोर्ट बन जाती। ओके यश। ओके मैम, यस मैम। नेक्स्ट थिंग आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है
if you remember, in our very first class we discussed about टेक्निकल कम्युनिकेशन. एक टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम योर जनरल कम्युनिकेशन. इट इज़ वेरी प्रिसाइज, पॉइंट टू पॉइंट, और ये आपकी फैक्ट्स एंड डिटेल्स की बात करती है. ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होती है. तो यही सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक रिपोर्ट के. बिल्कुल मत पढ़ना इस चीज़ को, ये वाला पार्ट भले ही छोड़ देना, बिकॉज ये आपकी बेसिक्स हैं. ये हम लोग ऑलरेडी फंडामेंटल्स में हम लोग कवर कर चुके हैं. जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन के, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी रिपोर्ट के, बिकॉज जो आपकी रिपोर्ट है वो आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंडर ही आती है. ओके, वही बात है, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पेशल फॉर्मेट वगैरह होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी वही चीज़ है. नेक्स्ट थिंग इज कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स की जो कैटेगरीज है, ठीक है. फर्स्ट थिंग, आपकी पर्पस बेसिस पर जो रिपोर्ट्स बनती है, वो पर्पस बेसिस पे कैसे, या वो इंफॉर्मेटिव होगी या फिर वो एनालिटिकल होगी. इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स जो होती हैं वो होती हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जिनका मेन फोकस वो होता है इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होता है. आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है अपने रीडर्स को. वो रिपोर्ट्स होती हैं इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स. लेकिन एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, उनका जो मेन आइडिया होता है वो अपने रीडर्स को सल्यूशन देने का होता है. वो मेनली फोकस्ड होती है सल्यूशन साइड पर, और इंफॉर्मेटिव जो रिपोर्ट्स होती है वो मेनली फोकस्ड होती हैं आपकी प्रॉब्लम साइड पर. तो फर्स्ट कैटेगरी इज़ योर पर्पस कैटेगरी, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, योर इंफॉर्मेटिव एंड योर एनालिटिकल. सेकेंड इज़ योर फ्रीक्वेंसी बेस्ड, पीरियोडिक और स्पेशल. पीरियोडिक रिपोर्ट्स आर लाइक कि जो कि आपके लाइक बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हाफ ईयरली के बेसिस पे जो रिपोर्ट आ गई किसी भी सेक्शन में, और आपकी ईयरली बेसिस पे जो रिपोर्ट आ गई. सो ऐसे ही वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं. दीज आर फिक्स, वो आनी हैं, आके ही रहेंगी. बट स्पेशल रिपोर्ट्स किसी भी स्पेशल ओकेजन पे आती हैं. इमेजिन बहुत सारे बच्चों ने एक साथ ज्वाइन किया है कोई भी ऑफिस, एंड अब उनका प्रोविजन टाइम ख़त्म हो रहा है, उनको उनके नए ग्रुप में साइन हो रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स अलग से बनती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड. नेक्स्ट इज़ योर ओरल एंड योर रिटर्न. मोड ऑफ प्रेजेंटेशन पे जो बेस्ड रिपोर्ट्स होती हैं, ओरल एंड रिटर्न. ओरल का एक एग्जांपल मैं आपको जो दे सकती हूँ वो यही होगा कि आपकी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हो गई, एंड रिटर्न तो आपका जो वाइडली यूज़ होता है वो. नेक्स्ट इज़ योर शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट, जो आपकी लेंथ बेस्ड होती हैं. लॉन्ग रिपोर्ट्स वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं एंड बल्कि होती हैं नेचर में, बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं. मोस्ट probably in your last semester you will be making a manuscript or a research report. Most probably, I'm not sure, because some of my friends in their engineering they did, so that's what I'm saying. Short reports are like your memos and your letters और आपके प्री प्रिंटेड फॉर्म्स. इसके बारे में हम फॉर्मेट्स में जब चेक करेंगे इसके बारे में तब क्लियरली अच्छे से बात करेंगे. एक होती हैं आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स. बेसिकली हम लोग अगर टेक्निकल साइड की बात करें तो विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स फॉर्मल रिपोर्ट्स, बट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स 100%ली इनफॉर्मल नहीं होती, उसका कुछ पार्ट ही इनफॉर्मल होता है. तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस को एड्रेस कर रहे हो. सो मतलब जो मेन होता है, जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो आपका इसमें होता है कि आपका रीडर जो है वो स्पेसिफिक है. बट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स भी में भी आपको रीडर स्पेसिफिक देखते हुए उतनी ज़्यादा पोलाइटली वो करना पड़ता है. समटाइम व्हाट हैपेंस कि व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू बी पोलाइट इन अ रिटन वे, तो आपका जो रीडर होता है वो आपकी पोलाइटनेस को कैसे भी कंसिडर कर सकता है. तो एक इनफॉर्मल रिलेशन जो होता है एक लेटर के बीच में, एक डॉक्यूमेंट के बीच में और आपके रीडर के बीच में, वो क्रिएट हो जाता है. सो वो बेसिकली ऐसे आपके अप्रोच बेस्ड होता है कि आप कितने ज़्यादा इनफॉर्मल
हो रहे, कितने ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं अपने रीडर के साथ, इसको बेस करता है। नेक्स्ट थिंग इज योर टारगेट ऑडियंस, योर इंडिविजुअल और योर ग्रुप। सी व्हेन इट कम्स टू your report, your technical research report, which you will be making in your final semester or in your final year. So वो आपकी individual report होगी, because you have to give that particular report to your professor only. But कभी कभी organizations में जो होता है, क्या होता है कि आपको रिपोर्ट देनी होती है एक लार्जर ग्रुप को, सो आप उसको एज अ नोटिस अपने नोटिस बोर्ड पे डाल देते हैं, जो कि एक मेमो का फॉर्म होता है। उसमें कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, बिकॉज जिन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग क्वेश्चंस के साथ कवर करते हुए करेंगे। रिपोर्ट्स की इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, एंड आपका फॉर्मेट क्लियरली समझना ये इम्पोर्टेंट। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन गिव इट अ रीड। थोड़ी ज़्यादा नॉलेज में कुछ ख़राबी नहीं है, इफ़ यू वांट। अदरवाइज़ आई फील कि ये इतनी ज़्यादा मुझको इतना ज़्यादा सही लगा नहीं था, तो इस वजह से मैंने नहीं मार्क किया, और मैंने ज़्यादा फोकस भी नहीं किया इस साइड पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेट शुरू करेंगे, एंड आई स्टार्टेड फॉर्मेट इन अनदर क्लास, एंड लोगों को प्रॉब्लम हो रही है विद मेमोरेंडम। Have you done memorandum in your previous semesters or in your previous year? Memo किया है? No, no, ma'am. Yes? No, ma'am. No, ma'am. No, Okay. ma'am. Okay. कोई इशू नहीं। लेटर्स किए हैं? Yes, ma'am. Yes, Let us cover. yes, ma'am. And pre-printed forms? No. No, ma'am. Okay. हम So सिर्फ first, लेटर्स कर रहे हैं मैम ने। okay, letters and reports, ये दोनों चीज़ें तो की है। Yes, ma'am. ओके, सो ये शुरू करने से पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट मेमो। मेमोज क्या होते हैं, एंड रिपोर्ट और जनरल मेमोज में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो कैसे होता है। ओके, तो मैं आपको पहले मेमो पढ़ाऊँगी, बिकॉज़ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अब मेमो देखेंगे। बहुत सिंपल होता है, बहुत बेसिक होता है। आई होप यू हैव डन नोटिस अपने स्कूलिंग टाइम पर, नोटिस किए हैं स्कूल में। Yes, ma'am, करें हैं। यस, वो थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर होता है, बट आइडिया स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, एंड अभी के लिए विल मूव टू अ Ma'am, क्लास अभी एक्टिविटी class, साइड। यस, ma'am, अभी class ऑफ हो रही है। नहीं, प्रेजेंटेशन क्लास एक्टिविटी, I told you that we'll be having this on a daily basis. Okay, so guys, what was the topic? टॉपिक क्या था भाई? फेलियर्स। मैम पता नहीं। Ma'am, corruption is necessary evil. ओके, एंड विद योर रिस्पॉन्स पता नहीं, आई एम श्योर कि किसी ने प्रिपेयर भी नहीं किया होगा। Ma'am, but this मैम topic मैंने was तो for कल ही ज्वाइन Saturday's किया है। class. मैम मैंने कल ही Wait ज्वाइन a किया minute. था, इसलिए मेरे को पता नहीं। Okay, no issues. Grisha, what were you saying? Ma'am, this topic was for of Saturday's class. I thought you have given new topic on Saturday. No, no, no. Yeah. Only 10 students presented on lockdown, 3 presented on failures, and none corruption पर।
So yes, मैम आज का टॉपिक है क्या? corruption is a necessary evil. मैम नेक्स्ट क्लास में बताना है। What? मैम Prashant, ये can अभी you say बताना it? है मुझसे। Okay, Rahul is हेलो prepared, but he cannot speak. हेलो हेलो It's okay, Rahul. Yes, yes, yes. मैम अभी बताना है, इस पर मतलब पॉइंट्स बना। I gave this topic मैम पहले आपकी भी. आवाज लग प्रशांत, आई एम आपकी सेइंग कि आवाज मैंने एक टॉपिक क्लास में दिया था, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक विच इज फेलियर कैन स्टेपिंग स्टोन और योर स्टम्बलिंग ब्लॉक, अगर आप इस पर प्रिपेयर्ड हैं so you can speak on that because only 3 students have presented, Virisha, Rahul and Satish. ये 3 लोग हैं जो कि प्रेजेंट करते हैं हर टॉपिक पर. मैम लॉकडाउन आप पर एक बार और विरिशा. टॉपिक रिपीट कर दीजिए मैम, अभी वाला था। ओके, मैंने भी तो किया था अभी वाला टॉपिक मैम एक हु इज दैट? प्रियंका. मैम। यस मैम। आपने फेलियर्स पे किया था. मैम उस दिन एब्सेंट थी, सो लॉकडाउन वाले पे किया। हाँ, आई नो दैट. आई हैव योर, यू नो, आई हैव नोटेड डाउन इन माय नोटबुक. बट आपने फेलियर्स पे नहीं किया था. मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने दोनों टॉपिक्स पे किए हैं. मैम यस. मैम मैंने लॉकडाउन पे किया था, लेकिन उसके बाद हमें टीम से रिमूव कर दिया था फीस इशू की वजह से, इसलिए आगे किसी पे हुआ ही नहीं। यस और यश, अब मार्क यू हाँ ए. सो ओके. मैम, करप्शन के I'm लिए giving भी आज पता चला है। no issues. I'm giving you time. प्रिपेयर करो. दूसरा टॉपिक भी बता रही हूँ, जो टॉपिक अभी लग रहा है उस पर प्रिपेयर करो एंड वी विल सी नेक्स्ट क्लास में. लाइक आई टेक योर अटेंडेंस एंड नेक्स्ट क्लास में जितने भी बच्चे आएंगे जो अभी भी प्रेजेंट है, सबसे पहले मेमो से पहले ये एक्टिविटी होगी बिकॉज आई एम वेरी सीरियस इन एक्टिविटीज़. आपको बाद में जब आप एकदम फ्लुएंट हो जाओगे इन सारी चीज़ों में, तब आपको रियलाइज़ होगा. जब आप और लोगों को देखोगे बीच में फंबल करते हुए और आइडियाज़ ना फॉर्म करते हुए और सही से प्रेजेंट ना करते हुए, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ओके, ये एक्टिविटी क्यों थी. Check your chat box. This is the first topic and I'm writing it down the another one, which is corruption is a necessary evil. It's okay, Prashant, but in next class, come prepared. किसी भी एक टॉपिक के साथ, if you want to if you really want to present on both the topics, you are most welcome. Because मैं टॉपिक्स के साथ I'm marking you so that I'll also be knowing कि कितने बच्चे कितना ज़्यादा participate करते हैं and कितना ज़्यादा इनमें improvement है. This is communication class and you have to take these activities very seriously. ओके. टॉपिक समझ आ गए ओके दोनों. ओके मैम ओके, सो नेक्स्ट क्लास यस में मैम। कम प्रिपेयर विद योर पॉइंटर्स एटलीस्ट 4 मिनट. यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 4 मिनट, कम से कम 4 मिनट, बिकॉज उससे ज़्यादा बहुत कम टाइम मिलता है जीडीज में और बाकी की जगह पर आपको बोलने के लिए. सो हम लोग मैक्स लेके चलेंगे अभी 4 मिनट्स. ओके. एंड नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट वील कवर मेमोरेंडम पार्ट, देन टेक्निकल मेमो, और उसका फॉर्मेट याद करेंगे. लाइक क्लास में याद करेंगे उसका फॉर्मेट.
सो आपको कोई इशू ना हो बाद में, कि आपको बाद में याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। विल ट्राई कि हम लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा क्लियरली समझ लें ताकि वो हमें क्लास में ही कवर हो जाए, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको बाद में बहुत सारा प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर, आई कैन फील दैट। सो मैं आपको प्रेशराइज नहीं करना चाहती इसके लिए। दैट्स वाई मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स देती हूँ विच विल यूजुअली टेक 20 मिनट्स, और हम एक दिन छोड़ के एक दिन मिलते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। मैम सेशनल सो कब है? आई डोंट नो, बट या फील सो कि आपके वो फर्स्ट वीक सितंबर के, ओके दे विल मैम। नोटिफाई यू, डोंट वरी, दे विल श्योरली नोटिफाई यू। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट से है, तो इससे पहले आप अपनी चीज़ों को कवर कर लें। I'm again asking you to prepare your examples हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए। Each and every question consists a part जिसमें मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछा है, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि आप वहाँ पर जाके नर्वस ना हो जब अपना पेपर करें। एंड आई डोंट माइंड कि आप ये कहीं से नोट करके कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपने खुद ने बनाए वहाँ पे अगर टू नो कि ओके आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था ये समझ आ गया। डेफिनेशन नोट की जा सकती है बट कोई एग्जाम्पल नोट नहीं करता। और अगर आपको ये ट्राई करना है आप ट्राई कर लो, वो मुझे पता लग जाएगा बिकॉज मैंने आपको पढ़ाने से पहले बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज रेफर किए हैं। सो अपने खुद के एग्जाम्पल्स पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो, हर टॉपिक के एटलीस्ट एक दो। ओके ओके मैम। हाँ, तो